नमस्कार, मैं वंशिका त्रिपाठी और आप सब देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया। आज हम आपको लखनऊ की शान, लखनऊ की धरोहर और नवाबों की पहचान बड़ा इमाम बाड़ा घुमाने वाले हैं। वो बड़ा इमाम बाड़ा जिसे लोग देखने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं। हम आपको बताएंगे कि यहाँ के बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नई नई बातें आई हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि ये बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया किसने, कब बनवाया, यहाँ पे रूमी दरवाज़ा क्या है, सारी चीज़ें इसको हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए आगे। किसने बनवाया है, कब बनवाया है और इसके अंदर और भी कौन सी सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जब हमने एंट्री ली बड़ा इमाम बाड़ा में तो कितना प्यारा गार्डन हमें देखने को मिला। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसे संजो के रखा गया है। फूल लगे हुए हैं, ग्रीनरी बनाई रखने के लिए लोग यहाँ पे काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए लोग लगे रहते हैं कि इनकी जो सुंदरता है वो बनी रहे। इस इमारत को अशफिदुल्लाह ने 1784 से 94 के मध्य में ये इमारत बनवाई थी और इससे हम भूल भुलैया भी कहते हैं। जी हाँ, हमें आगे अंदर अगर चलेंगे तो हमें भूल भुलैया भी देखने को मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको भूल भुलैया के भी जितने रास्ते हैं वो बताते हम रहें, क्योंकि हमारा काम है कि आप तक पूरी जानकारी पहुँचे इस पूरे भूल भुलैया के बारे में, इस पूरे इमाम बाड़ा के बारे में। लेकिन इसकी खूबसूरती है उसे देख कर नज़र हटती ही नहीं है, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, फॉरेन से आते हैं हमारे बड़ा इमाम बाड़ा को देखने। तो कुछ लोग से आइए हम बात भी करेंगे कि वहाँ यहाँ आकर उन्हें कैसा फील हो रहा है। Okay, so may I talk to you for a few minutes? Sure. Okay. So what would you like about Imam Bada? I don't really know, but They haven't gone in yet. It's like they just got here. Okay, they're first arrival. Okay, so how do you know about this place? no, I know nothing. No, who told you about this place that you have to come? This man. Okay, he. So you like Lucknow? Yeah, it's cool. It's cool. How many places you visit in Lucknow? We went to the market. Where else did we go? This is like our first, I guess I would say, first real day of really exploring. But we've. Okay, you wear mehendi right now. I can see that. Yes. So Yes, you like it? yes, I do. I love it. It's really pretty. What do you like in it? I like the designs, the details that it takes to get into it. I like the meaning behind it and all that. Yeah. So it's like you love ethic of India, right? Yes. Yeah. What is the most beautiful tradition would you like to wear in India? The sari was. Yeah, I wore one. Yes, I wore one. It was. Yeah, I loved it. Okay, you want to wear a Banasi sari, right? That's the one she wore. Okay, she want. Actually, if you want to try to wear a sari, firstly you have to wear a Banasi sari because in India it is a very traditional sari. So I suggest you, if you want to wear it. By the way, you're looking so beautiful. Oh, thank you so much. Thanks. Anything which you have to want to say about Indian people? I love them. I love them. Yes. They support you? Do they? I don't know. Actually, there are so many social media influencers who said that that Indian people's fraud them or anything else. You have experience right now With what? about frauds and all the things. Not much. Experienced it? Yeah, kind of. So if you these things affect you in a bad way or in a good way? I don't know. Sorry. What? So you like the total
The final is that you like Indian people. Yes. Yes. We really love to hear that you like Indian peoples, and you also evaluate and you can expand our culture the way you are doing these things. Thank you so much for coming in India. Bye. Have a good day. Bye. ऑनरर्स आए, उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि उन्हें इंडिया का कल्चर कैसा लगता है। वो यहाँ बड़ा इमाम बड़ा देखने आए हैं। हालांकि इनका ये पहला विजिट है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमने जैसा आपको दिखाया कि उन्होंने हाथों में मेहंदी भी लगाई थी, तो इससे पता चलता है कि वो इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं जो हमारे बाहर के लोग हैं। तो ये चीज़ें देखकर काफ़ी खुशी मिलती है हम सबको कि हमारे इंडियन कल्चर इतना आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर घुस चुके हैं और आगे हम आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे। पीछे जो गेट है, इसी गेट से हम अंदर आए हैं। कितनी खूबसूरती, कितनी कारीगरी के साथ इसको बनाया गया है, हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से कि कितनी खूबसूरती के साथ और कितना ऊंचा ये गेट बनाया गया है। ये सारी एथिक्स और ये सारी जो इंडियन कल्चर्स हैं इन सबको बताती हैं कि जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आगे हम सामने देखेंगे तो इसी गेट से हम अंदर जाएंगे और आगे की जानकारी हम आपको देंगे कि जो हमारे बड़ा इमाम बाड़ा है उसके अंदर 9 हॉल हैं। जी हाँ, 9 तरीके के हॉल अंदर हैं। अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर एक हॉल से रूबरू कराएं, हर एक हॉल के बारे में आपको जानकारी दें। यहाँ पे लोगों की भी जो भीड़ रहती है वो कभी कम नहीं होती है। आप जब भी आएंगे यहाँ लोग आपको पर्याप्त मिलेंगे देखने के लिए, और सभी लोग यहाँ के चीज़ों के बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ की खूबसूरती के बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए आपको अंदर बताएंगे, क्योंकि अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ के नवाब थे उनकी मुकुट भी देखने को मिलेंगे आपको, प्लस आपको वो मुकुट देखने को मिलेंगे, वो मुकुट जो हमारे अंग्रेज थे जो लेकर चले गए थे, उनका एक तरीके का कह सकते हैं हम कि डुप्लीकेट यहाँ बना के रखा गया है। तो हमको दिखाएंगे कि वो किस तरीके का दिखता था। ये सारी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो अंदर जाके पता करने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ। को अंदर लेकर जाने की, ताकि हम आपको भूल भुलैया की जितनी भी चीज़ें हैं वो दिखा सकें, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमने भाई ये भी बताया कि हम मीडिया से हैं, फिर भी कैमरा अलाउड नहीं है अंदर। उनका कहना है कि ये जो स्कल्पचर है, ये जो मॉन्यूमेंट बना है, इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। आप सिर्फ इसके अंदर जो है जा सकते हैं और देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग इस हॉल के अंदर जा रहे हैं वो सारे नंगे पैर जाएंगे, यानी कि कोई भी चप्पल या जूता पहन के अंदर नहीं जाएगा। सब वहाँ जो स्पॉट है वहाँ पे अपने चप्पल जूते सब उतारेंगे। वहाँ से आपको एक कूपन मिलता है, वो कूपन आपके पास रहना चाहिए। जब आप वापस आएँ तो आपको कूपन दिखा के अपने चप्पल जूते ले लें। इसके बाद इस गेट से आपकी एंट्री होती है। इस गेट में मुझे जितना नॉलेज, मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर 9 हॉल हैं, लेकिन जो 3 हॉल हैं वो काफ़ी मुख्य हैं और इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप सब ने पहले देखा कि हमने पूरी कोशिश की कि हम अंदर आपको दिखाएं जो भी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली। अब हम यहाँ से चलेंगे घंटा घर। उन्होंने बोला आप घंटा घर जाइए, पहले वहाँ से परमिशन लीजिए, तब आपको अंदर आना अलाउड है। तो हम यहाँ से पहले घंटा घर जाएंगे, फिर परमिशन लेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि जो ये भूल भुलैया है उसमें 1024 दरवाजे हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन बाहर आने के लिए केवल 2 दरवाजे हैं। ये इतनी दरवाजे इसलिए बनवाए गए थे और बाहर आने के केवल 2 दरवाजे इसलिए बनवाए गए थे कि अगर कोई इंसान अंदर जाए, कोई दुश्मन अंदर जाए तो वो भ्रमित हो जाए, बाहर ना निकल पाए और वहाँ के लोग उसे पकड़ लें। इसलिए इतने दरवाजे अंदर जाने के लिए बनवाए गए थे और बाहर आने के लिए केवल 2 दरवाजे बनाए गए थे। तो ये चीज़ें हम आपको दिखा तो नहीं पाए, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास है हम आपको ज़रूर देंगे ताकि आपको इससे काफ़ी हेल्प हो।